What is up, you beautiful people? This is Jayant, Head of Product and Development at Uability, and I am here with a phenomenal case study from our community. In this particular podcast, I'll be interviewing somebody known as Omkar Dada. He is a chartered accountant who is right now a stock market coach as well. And what I'll be doing is I'll be deep diving into his results. He's a phenomenal expert, and right inside Uability, as soon as he joined, he has gotten more than 7 lakhs in sales. Am I correct, Omkar bhai? Yeah. Right? Yeah. And how did he Thank achieve you, that? Jay. He has, and this, by the way, before launching his ads. So we'll deep dive into his marketing. We'll deep dive into his product. We'll deep dive into his experience in this podcast, and overall gain a lot of knowledge. So that being Yeah. said, welcome Omkar bhai to the podcast. Right. Thank you, Jay. Thank you for having me over here. Right. It's a pleasure to always, have a conversation with you. Awesome, man. Thank you very much. Omkar bhai, I want to know a little bit about what you do. I know that you have been a chartered accountant now, helping people grow on stocks. I want to know a little bit about you, how you started and how this whole journey went. Yeah, sure, definitely. Basically, my journey started well back before I completed my chartered accountancy. So it started way back in 2018 itself. And since last 6 plus years, I'm into stock markets. I'm a SEBI registered investment advisor as well. At the same time, being a chartered accountant. And basically, I'm an expert into cash market and F&O market trading. And my whole mantra of trading and investing is to make consistent income for the period of month on month basis and to have a target of 3 to 4% ROI per month. That's it. Right. Okay. So that's my main to So have a 3% is consistent like a income. monthly thing or like what's the scene? On an average, it comes around 3 to 4%. Because again, markets are volatile and it's not like it does not work like an FD, right? So it is But I think that's nothing. still a good return, don't you think? Like, because if you look at a yearly returns on stocks, it's like what, 12 to 15% is what they say? If you compare with the Nifty itself, right? If you compare our returns with index gives somewhere around 14 to 15% on an average, CAGR, right? So it's So annual. our annual returns. So our main motto should be to beat the index, first of all. Look, if you're trying to, actively participate in the market, we should, effortlessly beat market, at least I suppose. And considering the returns of Mr. Warren Buffett himself, he made somewhere around 18 to 19% CAGR year on year basis. So Yeah. you can compare those returns. So there's not much difference, but the amount of time he has given to market and the compounding he has given, that makes the difference. So even if we are making 2 to 3% per month, it's hell of a return. If you compare with the Because that's index. like 20%, 24%. Exactly. But मेन मोटो क्या है कि आपको लंबे समय तक बैठते आना चाहिए. We need to stay for a longer period in the markets. I mean, that's something that you can't replace. That's like the fundamentals, right? Yeah, that's How did you basically. come into the stocks though? Like you are a chartered accountant. Like, did you work somewhere? Like, how did you enter stock market? Exactly. So, when I was in CA finance, one of our professors who used to teach us SFM, there was a subject called as SFM. He used to do, option trading, and he used to do option selling a lot. And in those times, the margin requirement was quite low. For example, let's say for one trade today, it's cost us around somewhere around 1 lakh rupees. In those days, in 2017-18, it used to cost just 10,000 rupees. Right? So imagine the kind of difference we are talking about in terms of margin. So on that margin, he used to make monthly 5 to 6% returns. Oh, Right. So I was, mesmerized and oh, fascinated by when him. was this again? Sorry, when was In this? 17-18, 2017. Acha, okay, nice. That. Yeah. So I was particularly fascinated by the returns he was making, and not only in the option side, but into the equity markets. He was particularly into the market since last 20 plus years. So the kind of equity portfolio he had was huge. Right? He was making returns in crores. Right. So I was just fascinated by the kind of returns he was making in the first place. Hmm. And then you like surrendered to Yeah. him?
How did you learn? Definitely. Before that, I had strict rule that I will never invest in stocks. Okay. But life is such, so a total turnaround in my life, and that is where I started, having a great interest towards stock market, particularly towards stocks, and that is where I started my journey, and till now it's been a great journey. Ah, nice, man. I mean, that's Right? definitely. In fact, speaking to you guys who are in this whole stock space, I was one of those guys till this point. Was like, अरे stocks में कौन डालेगा यार बहुत मेहनत है and all that. But then I looked at your returns, your students' returns. I'm like, शायद डाल लेना चाहिए यहाँ पे भी. नहीं, that's a. देखो ये कैसा है, ये मस्ट है आपकी आज के डेट पे, बाकी पर यू विल बी फोर्स्ड टू कम इनटू मार्केट्स। Hmm. देखो इवेंचुअली आपको इन्फ्लेशन क्या करने वाला है, इन्फ्लेशन सारी चीजों का रेट्स घटाने वाला है, दाम बढ़ाने वाला है। Hmm. सो आपको एक अच्छा इन्फ्लेशन को बीट करने वाला इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेने वाला एक vehicle चाहिए. एक व्हीकल चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। Hmm. सो मेरे हिसाब से आज के डेट पे स्टॉक्स के अलावा बहुत कम ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है जो उसको इजीली कंफर्टेबली बीट कर। आई नो देयर आर म्यूचुअल फंड्स, बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग ह्यूज सीरीज, राइट? सो मेरा खुद का जो टारगेट रहता है, ऑब्वियसली आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज एज वेल, बट ऑन एन एवरेज मेरा साल का कम से कम 40 से 45% तो मैं आराम से करता हूँ इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, इफ आई एम स्पीकिंग। Whoa, really? हाँ इजीली होता Almost है। half the return you get like in a year. हाँ आराम से, और एक्चुअली बोलो तो ये कम है। All right. Okay. That's awesome. Let's talk बिकॉज about your स्टॉक मार्केट, students. Like, is that the similar number that your students also get? Like, what's the scene? हाँ आ जाता है। मैंने करीब करीब अभी मैं उनको भी, मतलब बेसिकली उनको बोलता हूँ कि यू जस्ट नीड टू हैव एन ऑब्जेक्टिव कि मुझे पहले बात मार्केट में प्रॉफिटेबल बन फॉर द फर्स्ट 3 to 6 months इन द फर्स्ट। आप जैसे ही आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन इंक्रीज योर रिटर्न्स बाय 2-3% पर month. And once you have the entire hold on to the markets, that it becomes easy for you to make it consistent in the long run as well. Yeah, true. Because why, यहाँ पे ना, especially with stocks, learning is a journey in itself. Like, you cannot escape that I'm still journey. learning. I'm still learning. You won't believe me. 100%, 100%. Because, but there is a notion in the market, Omkar bhai, where people are like, Telegram में हमको signals मिल जाते हैं या फिर YouTube से देख लेंगे. I mean, what are your views on that though? और देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक तो लैक ऑफ नॉलेज की है मेरे हिसाब से, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? कि अगर हमें एडवाइस भी लेंगे तो पहले जो एडवाइस जिसके पास से ले रहे हैं उसकी भी परख होनी चाहिए कि एडवाइजरी किसके पास से लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, आप जिंदगी में अगर एक चीज भी कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो भी आपको रिटर्न। सो एक तरीके से मेरे दो व्यूज है कि अगर आप एडवाइजरी चूज करते हो, तो मेक श्योर कि आप अप्रोप्रिएट सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट? उनका एक्सपीरियंस देखना चाहिए, नॉलेज क्या देखना चाहिए, जो परफॉर्मेंस है वो चेक करना चाहिए। एंड सेकंड ऑफ ऑल, मेरा ऐसा बोलना है कि आप कुछ भी एक रैंडमली एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो, बट लाइफ टाइम उसी को फॉलो, एक ही, राइट? टीवी पैनलिस्ट पे भी जो आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे वो गलत नहीं बोल रहे, उनको भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे 10 टीवी पैनलिस्ट है और एक एक आदमी 10 जनों को फॉलो करता है, एंड दैट इज वेयर मिस्टेक्स हैपन। आपको एक ही पैनलिस्ट, मतलब पैनलिस्ट जो रहेगा उसी को पकड़ना है और उसी के कॉल्स लेना है। So do you think that trading strategy also is depending on it varies from person to person? Because this is a डेफिनेटली। genuine question in my head because I have never in stock market, ठीक है, मैं आज तक एक पैसा नहीं डाला वहां पे, बट जस्ट क्यूरियस, मार्केट तो सेम है, राइट। ग्राफ्स तो सेम ही निकलते हैं, तो स्ट्रेटेजीज अलग अलग कैसे? और देखो, आपकी और मेरी और अंबानी जी की जो इनकम है, तीनों में डिफरेंस हो सकता है, राइट? अब उनकी रिस्क प्रोफाइल मेरे हिसाब से एग्रेसिव से भी एग्रेसिव, बिकॉज उनके पास अबंडेंस ऑफ मनी, राइट? अबंडेंस ऑफ अर्नड इनकम। और लोग यहाँ पे भूल जाते हैं कि उनका अर्नड इनकम क्या है। और बहुत सारे लोग पहली बार कोशिश क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश, एंड दैट इज वेयर दे मिक्स थिंग्स अप, एंड वहां पे गलते हैं। तो पहली बात, आपको अर्न इनकम पे फोकस करना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल मेक स्टॉक मार्केट योर सेकंड सोर्स, नॉट योर प्राइम। फर्स्ट थिंग। सेकंड, यू नीड टू वेरी अंडरस्टैंड नाइस, योर रिस्क ट्रू, प्रोफाइल, या, राइट? तो आपको खुद की रिस्क प्रोफाइलिंग समझनी है कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, फाइनेंशियल गोल्स ऑब्जेक्टिव्स मैच होना चाहिए। सो whenever you are doing investment, I have a rule I teach to my students: you need to keep
आइडिया ऑफ थ्री थिंग्स: रिस्क, रिटर्न एंड होल्डिंग पावर। ये तीनों चीजों पे आपकी कौन सी भी इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, आप कौन से भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आप जब इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, ये तीन चीजें ही मैटर। हम्म। आप जब एफडी में इन्वेस्ट करते हो, आप उसमें एक्सपेक्ट करते हो कि डबल होना, तो आपको पता है 7 to 8 years लगने हैं। तो आपको होल्डिंग पीरियड भी पता है, रिस्क भी पता है कि रिस्क नहीं है, हाँ, रिटर्न भी पता है कि मुझे 6 to 7% ईयरली मिले। तो फिर ये आपको इक्विटी मार्केट्स के लिए भी आपको उतना कैलकुलेट समझना पड़ेगा। So it's the game of that risk, returns and the holding period. एग्जैक्टली एक एचएनआई क्लाइंट को उतना मार्केट की वोलेटिलिटी इम्पैक्ट नहीं करेगी जितना एक रिटेल पार्टिसिपेंट को करे। हाँ, बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे लिए 10 लाख रुपए भी लाइफ चेंजिंग अमाउंट है ना। एग्जैक्टली और वो अगर ऊपर नीचे हो गया तो डेफिनेटली अफेक्ट माय साइकोलॉजी, माय होल। एग्जैक्टली। अगर किसके पास करोड़ों के शेयर है, उनको लाखों से क्या होगा, लाखों उनके लिए चिल्लर होगी। या, ठीक है ऐसे। नाइस। तो रिस्क प्रोफाइल दिस इज इंटरेस्टिंग मैन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव यू हेल्प्ड सो फार, ओमकार भाई? 100+ हो चुका है। 100 plus, and how long have you been coaching? और ऑलमोस्ट 1.5 year। Okay, so in like just like 18 odd months, you are like, हाँ, और इनिशियली तो मतलब ऑर्गेनिक वे में ही था, फ्रैंकली स्पीकिंग विद यू। तो मेरा ऑब्जेक्टिव वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल की प्रोसेस पूरा सेटअप अच्छा करने में था। तो इनिशियल 6 months तो वो समझने में चले गए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स को। और कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे भी गई, वो सबको सेम ही जाती है। तो उसके हिसाब से मुझे फिर बनाना पड़ा, और आप बोल सकते हैं 1 साल में मैंने पूरा एक nice, okay, totally makes किया। sense. So how did you decide कि अब टीचिंग भी स्टार्ट करते हैं? बिकॉज बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि अगर किसी को रिटर्न आ रहे हो पढ़ाते क्यों है, राइट? तो what is your motivation to start this whole coaching business though? Number one thing, I'm good at one particular thing in the stock market. That is called that elite view. मेरे जैसा elite view पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ सकता। What is that, sorry? Can you repeat? Elite view. It's basically a rules based strategy. It's called as elite view principles. So based on elite view, you can pretty much forecast कि ये stock यहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ से रिवर्स होगा। It's a counting of 1 2 3 4 5। तो लेट्स से अगर आपकी सेकेंड वेव खत्म हो चुकी है, तो आपको पहले ही पता है कि थर्ड वेव कहाँ तक है। तो यू कैन बेसिकली फोरकास्ट एंड आई एम प्रीटी मच वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर Is it predictable? थिंग। हाँ डेफिनेटली, उस पर तो मेरी होती है Okay. सर। And how did you move into coaching part? I mean, you actively invest and also coach with people? हाँ डेफिनेटली। तो कैसा हुआ कि जैसे मैंने बोला कि मेरे जैसा कोई भी नहीं पढ़ सकता, मेरी वो खुद की एक स्ट्रैटेजी बहुत यूनिक है। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे भी सिखाओ, ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी लगी आपको। एंड दैट इज वेयर मुझे भी लगा कि साइमल्टेनियसली मेरा सीए का काम तो चल ही रहा है, बट एट द सेम टाइम आई हैव अ पैशन फॉर टीचिंग एज वेल। आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेशन एंड आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट इन व्हाट आई डू। तो वो वही वही चीज था जिससे मैंने शुरुआत Nice, man. I'm pretty glad that you started because you are 100 plus students, and now how's the result overall so far? Like everybody is at like 3 to 4% monthly, or like what's? ऑब्वियसली। देखो 100 में से मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि सबके सब सिक्सर मार रहे हैं। ये नहीं बोलूंगा मैं। बट अगेन इट्स अ गेम ऑफ पर्सनल साइकोलॉजी। सो Hmm. मैं इतना तो बोलूंगा कि यहाँ पे रिजल्ट मोर देन 30% 40% निकल। So for every 100 people I am teaching, 40 students are, easily making achieving their goals, their financial goals like that. What's happening with the rest 60 though? Lack of home study, lack of process, जो मैं बताता हूँ वो पूरा नहीं करते, टाइम नहीं दे पाते, right? And again, it's not a one day thing, right? हम सब ने डिग्री, हमें जितना भी लगे उसको भी समय देना पड़ा। तो Hmm. स्टॉक मार्केट भी ऐसा नहीं कि देयर सम मैजिक हुआ एंड यू नो आएगा कोई भी घुमाएगा और सीख जाएगी। इट टेक्स टाइम। हाँ, बट मेरा काम यहाँ पे क्या है कि वो जॉब आपको कट शॉर्ट करके, इफ Yeah. देयर आर 10,000 थिंग्स इन द मार्केट, आई विल हेल्प यू एलिमिनेट ऑलमोस्ट 9,990 थिंग्स। एक चीज सीखो अच्छे से। हाँ, तो मतलब मैं वो बोलूंगा कि इतने फेसेट्स आप देख लो मार्केट के, ये जरूरी। तो आपका टाइम बचेगा, प्रोसेस समझ में आएगा, क्लैरिटी रहेगी, विजन पता रह चले। Nice. और शुरुआत में बेसिकली मेरी जो रहती है वो बेसिकली मैं वहां से करता हूँ कि आपको पहले आईना दिखाता हूँ कि आपको बेसिकली चाहिए क्या। Hmm. Makes राइट। sense. तो काफी जरूरी है फाइनेंशियल टर्म्स में, बिकॉज अगर आपको क्लियर नहीं है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, तो मतलब आप आंख बंद करके गोली चलते 100%, 100%. जी, ये बताओ, like now that you have worked with 100 plus students,
you must have some really good success stories, and there will be some people who have not worked. It's normal. It's normal in coaching. Right. What have you seen the differences between the most successful students and what they do, and what are the things that most successful students do that the failed student don't do because of which they don't get results? Successful students literally copy paste. Huh. Okay. प्रोसेस देखो कैसा है, यहाँ पे आपको सिस्टम बेस्ड काम करना पड़ेगा, चेकलिस्ट प्रोसेस रहेगी, तो मैं आपको चेकलिस्ट देता हूँ, वो चेकलिस्ट को आपको अपनाना है एंड यू नीड टू फाइन ट्यून इट एज पर योर ओन रिस्क। वो फाइन ट्यून भी कैसे करना है मैं आपको बताऊँ कि Hmm. आपके नेचर को, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को, कोई इंट्राडे कर सकता है तो कोई लॉन्ग टर्म कर सकता है, कोई बोलता है कि सर मुझे शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट है, कोई बोलता है सर मैं सिर्फ एफ एंड ओ करना है। सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टू ट्रेड इन द मार्केट। मैं आपको पहले मेरा तरीका बताता हूँ एंड आई हेल्प यू टू मैच इट अप विथ योर ओन पर्सनल साइकोलॉजी। सो Okay. ये जो पूरा फुलफिल करता है एंड फिर उसमें चेंजेस आते हैं, दैट इज वेयर यू नो थिंग्स टेक टर्न अराउंड। तो वहां से इम्प्रूवमेंट्स आना था शुरू I से। get it. And how have you structured your coaching programs to get these people results, though? आई केप्ट इट वेरी सिंपल। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोचिंग की जरूरत भी होती है एंड एट द सेम टाइम यू नो पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग की काफी जरूरत है, Hmm. राइट? बिकॉज जब तक आपको पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग नहीं मिलता है, आपको मेरे हिसाब से एक सहारा नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता है कि आप आगे कैसे बढ़ पाओ। Yeah. तो मैं आपको पहले कोचिंग देता हूँ एंड वो कोचिंग जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, एज अ सेड मैं फाइन ट्यूनिंग करवाता हूँ। तो वो पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग की वजह से वो फाइन ट्यूनिंग आ जाती है, दैट इज वेयर आपको पिक्चर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आती है कि हाँ मुझे मार्केट में ये काम करना है, इस तरीके से करना है, इतने पैसे कमाने के लिए। जब आपको ये सारे फैसेट्स क्लियर होते हैं, हाँ आपको फिर आप आपकी पर्सनल जॉब, बिजनेस, जो भी है, पर्सनल लाइफ भी आप हैंडल कर सकते हैं Do एंड you यू डू think this नॉट is? जस्ट I'm ऑक्यूपेट getting करते a हैं। very nice vibe here, very good lesson here. आपने जो बोला personalized hand holding and that fine tuning of strategies. I think these two terms are synonymous with. This is go hand in hand with any coaching program. मतलब कोई भी coaching program start कर रहे हो तो वो थोड़ा सा personalization, वो hand holding किए बिना उस level का result देना बड़ा मुश्किल है. नहीं नहीं आ पाता, एग्जैक्टली। Exactly. बहुत जरूरी है। Probably this राइट। is why you are getting good results with your students as well, right? राइट। Awesome, man. So let's talk about a little bit about your experience at Ubility, right? Now that you are one of our star students, basically like cracked it. एक पैसा ads पे खर्चा नहीं करा, 7-8 रुपए निकाल लिए, 7-8 लाख रुपए निकाल लिए, right? So how was your funnel before, like, and what are the challenges that you're facing that you kind of fixed with us? फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज रनिंग फनल बिफोर जॉइनिंग यूनिवर्सिटी, सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, राइट? Of course, तो I mean, you're doing well हाँ, already. तो उसके पहले से भी मैं मार्केटिंग करता था, जो एड मेटा एड्स वगैरह में रन होते थे। बट वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे जो सर्विस में दे रहा था, आई वाज नॉट फीलिंग यू नो जॉब सेटिस्फाइड विद रिगार्ड्स टू व्हाट आई वाज गेटिंग, Hmm. व्हाट आई वाज रिसीविंग। जो मैं दे रहा था उसके मुकाबले मुझे प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली। सो कहीं ना कहीं मुझे खुद के सर्विसेज की you know, एक अप्रोप्रिएट वैल्यू भी सेट करना थी, राइट? उसको कैसे डिजाइन करना था एंड अगेन जो मुझे सर्विसेज भी ऑफर करनी थी उसमें क्लैरिटी, खुद का विजन क्रिएट करना है, बिकॉज अगर मुझे लॉन्ग टर्म तक काम करना है तो देयर शुड बी ए विजन, राइट? सो Yeah. यूएबिलिटी में मुझे एक वो चेंज आया। बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म विजन पे काम कैसे करना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सामने वाले को वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। आई थिंक सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि वैल्यू भी सामने आपको प्रोवाइड करते आना चाहिए, आपके स्टूडेंट्स को, आपके कस्टमर्स को। सो ये सेकंड एक पॉइंट है। थर्ड ऑब्वियसली मेरा ओवरऑल फनल पूरा चेंज हो चुका। फनल में पहले कहीं ना कहीं एक मास्टर क्लास चलाता था, इट वाज अ रिकॉर्डेड मास्टर क्लास एंड आई यूज्ड टू इनवाइट पीपल ओवर देयर एंड वो रिकॉर्डेड मास्टर क्लास से फिर मैं उनको ऑफर करता था फॉर माय नेक्स्ट अप लेवल। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगेन मेरा जो साइकोलॉजी चेंज हुआ, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग फ्यू बक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रोवाइडिंग वैल्यू एट द सेम टाइम, Nice. राइट? तो उनको भी वैल्यू मिलना चाहिए, इट शुड बी बेसिकली अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। Hmm. True. ये Obviously, थॉट I mean, प्रोसेस, it has to be a good transaction, not just आके देख लो. एग्जैक्टली। Yeah. look again, if I start to give anything for you know for 0 rupees or you know for cheap, उसकी वैल्यू नहीं बनती, राइट? तो मुझे अगेन एज आई सेड कि मुझे वैल्यू खुद की रखनी थी
and I wanted to place myself as an expert कि मैं expert हूँ, मैं आपको एक्चुअल में आपकी लाइफ में चेंजेस ला के दूंगा फाइनेंशियल। तो वो Right. मेरा एक मेजर गोल था कि वहाँ पे मैं सामने वाले को उस तरीके से हेल्प कर सकूं। Nice. I'm super happy, man. And did you implement our sales process as well somewhere? Did it Yeah, help? definitely. As I said, I've made changes in my entire service product, and I've already sold those products to 8 of my clients as of now. So वो existing clients ही थे। ऑर्गेनिक वे में उनको मैंने फिर से बात किया है, आपके ही प्रोसेस को मैंने उनको उसको अच्छी तरीके से सेटअप करके उनको प्लेस किया, प्रेजेंट किया, एंड रिजल्ट Yeah, man. Thank you very much for this because a lot of the people keep asking, "क्या तुम लोग में ऐसा अलग क्या है?" So I thought like from coming from somebody who has this vast experience of 100 plus clients and everything, it would make a lot of sense. And I like the way you are portraying क्योंकि ये पूरे interview में something that I kept noticing that you focused on a lot was customer satisfaction. अब बताते गए कि आप किस तरह से हैंड होल्ड करते हो क्या क्या करनी चाहिए एंड यू आर फाइन ट्यूनिंग एवरीबडी एंड there are very rare coaches who actually do this, who are like customer centric, not marketing centric. Because exactly in a world which is marketing centric, we should be the only one. We are probably the only ones, meaning we mean you, who are like very customer centric, and I think that definitely shows that that shows in the results and overall reputation as well, right? right. Cool, man. Thank you very much, Omkar ji. Before we kind of end the interview, do you have any final words for somebody who wants to get started with their online business? What has been your lesson if you want to share with them? Uh, in terms of entire business or in terms of in relation with usability? No, no, in general business, because you have started a business. हमारे साथ तो आ ही जाएंगे. We know we are good, but what do you think about overall? Like, if somebody wants to get started, what are the things that you have done in your business, sofa coaching business, that people should do? Somebody who is contemplating, मैं start करूँ, नहीं करूँ, कैसे करूँ, all of that. Exactly. So first of all, do not overthink and do not try to make the perfect product. कि मतलब परफेक्ट प्रोडक्ट जब तक नहीं बनेगा मैं उतरूंगा नहीं मार्केट में, ये कंसेप्ट साइड में रखो। तो प्रोडक्ट अपने आप कस्टमर के रिकमेंडेशन से, चेंजेस से, सजेशन से अपने आप अच्छा बनते जाएगा। एंड मेरे हिसाब से प्रोडक्ट से ज्यादा उस पर सोचो कि वो प्रोडक्ट आप दोगे किस और किसको दो। राइट, आपका टारगेट ऑडियंस आपको क्लियर चाहिए कि किसके साथ आपको काम करना है, हु इज योर ड्रीम कस्टमर आता है। राइट, Yeah, तो because I realized you also mentioned that you have narrowed down your customer, right? That's also interesting that we didn't talk about. Can you share a little bit about that? एग्जैक्टली जैसे मैं बोल रहा था कि अगर मैं हर एक कस्टमर को मैं सर्विस कैटर करने के दे दूंगा तो वहां पे वो भी आएगा जिसका 10,000 का मंथली इनकम है, वो भी आएगा जो जिसका 10 लाख का है। तो आपको पहले वो डिसाइड करना है टारगेट ऑडियंस में किसके साथ काम है। सो देयर शुड बी क्लैरिटी इन योर टारगेट ऑडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट, क्लियर मार्केटिंग मैसेज। राइट, कि आपका एंड गोल क्या है, आपकी सर्विसेज से सामने वाले को एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्लियर होना चाहिए, ये वो आपके प्रेजेंटेशन में दिखना चाहिए। Right? Your marketing message should be quite clear. Right? And I think so that, as I said, do not overthink, and focus more on, again, as I said, कि आप क्लाइंट्स किसको पकड़ोगे और कैसे दो। अगर वो आपको आता है, अगर आपको सेल्स आता है, तो आप कुछ भी कर लो, कौन 100%. सा भी सर्विस कुछ भी वैसे सेल्स आना सबसे पहले। 100%. And joignability. एंड जॉब That's it. That's it. Thank you very much, Omkar bhai. It was a fun podcast. Let's absolutely meet sometime offline. I like your personality as well. And keep doing the good work. Thank you very much. थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर थैंक्स